we are going to start a very simple topic, work. Work. There are n number of activities in our daily life, but what is work? All the activities in which position of the body is changed. Position of the body is changed by applying force on it are called work in the language of science. जिन एक्टिविटीज में पोजीशन ऑफ द बॉडी है जो हमारी, ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसको हम साइंस की लैंग्वेज में वर्क कहा जाएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ एस डिस्प्लेसमेंट अगर हम हो रहा है आफ्टर टाइम टी there is some displacement of the position of this body, then we will call it as work. So work done by a body depends upon the two factors. First factor is the magnitude of applied force. Magnitude of applied force, कि हमने उस बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाइड किया है, ठीक है, उस पर हमारा वर्क डिपेंड करता है। एंड सेकंड इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है या कितना डिस्टेंस चेंज हुआ है बाय अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो दीज आर टू फैक्टर्स। सो वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज W equal to F into S. Work done can be calculated F into S. This is called that's how we can measure the work done. कितना वर्क डन कैलकुलेट किया है हम यहाँ पर F into S से कैलकुलेट कर सकते हैं। When force is applied on this direction at angle theta, so we will apply a formula F into S and cos theta of angle between displacement and force. So formula will be Fs cos theta. इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं F cos theta into S, horizontal component of the force in the direction of displacement. Displacement की डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट होगा फोर्स का F cos theta, इसको हम लेंगे and into displacement. Here F and theta will not contribute any type of work done. So W will be F into S and Fs cos theta. First point, theta is 0 degree, cos 0 equal to 1. So in this case, work done will be maximum. Work done by a body or by external force. यहाँ पर वर्क डन कौन कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स. This will be equal to W max F into S. When theta is 0 degree, work done will be maximum W F into S. ठीक है. In next case, if theta is 90 degree. In second case, if S इक्वल टू 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो
when if the displacement of the body is 0. If displacement of a body is 0, जैसे हम इस वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन 15 न्यूटन 100 न्यूटन, but there is no displacement, there is some amount of force is there, but work done will be 0. If the displacement of the body is 0, no work done has to be done. No work done. ठीक है, इस कंडीशन में कोई भी वर्क डन नहीं किया जाएगा। इस कंडीशन में हमें कोई भी वर्क डन नहीं मिलेगा। इस वाले डायग्राम में कुछ इस तरह से देख सकते हैं, F फोर्स है, S यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, इस तरह से। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है वर्क डन F इंटू S। ठीक है, यहाँ पर एक और केस लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री and some amount of force is there, W will be F into S cos 90, cos 90 कितना होता है 0, तो वर्क डन यहाँ पर कितना मिलेगा 0, जब थीटा 90 है, इसका मतलब when there is an angle between force and displacement is 90, force and displacement is 90 degree. In this condition, work done will be 0 if the displacement is perpendicular to the direction of the force. If the displacement, यहाँ पर displacement 0 नहीं है, लेकिन वो क्या है, फोर्स के perpendicular है। When the displacement is perpendicular to the direction of force, ठीक है, when then no work is done. इस कंडीशन में भी क्या होगा, कोई वर्क डन नहीं हो। यहाँ पर हम इसकी यूनिट्स भी देख सकते हैं एसआई में और इसका सीजीएस में। वो किस तरह से होंगी एसआई और सीजीएस में, एसआई सिस्टम में जो हमारी यूनिट्स होंगी 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम जब डायन लेंगे तब, तो 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। अर्ग हमें किस में मिलता है, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस यूनिट्स वर्किंग क्या है, अर्ग। ये हमें कैसे मिला, 1 न्यूटन में कितना होता है, 10 की पावर 5 टाइम, और मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। इनका मल्टीप्लाई करके डाइन इंटू जो सेंटीमीटर मिलेगा उसी को हम अर्ग कहते हैं। तो 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, आगे हम एनर्जी टॉपिक लेके आएंगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड हाउ विल वी रिलेट वर्क टू द एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट backbone of these questions, physics. Okay, thank you.